کہ برائلر کی رسد کے مقابلے میں طلب میں اضافہ۔ مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 354 روپے سے 374 روپے ہو گئی ہے اور زندہ برائلر کے دام بھی 14 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں۔ فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل آج مسلم مصنوعات کے 80 اقسام میں جاری کیا۔ آج فرائی قیمتوں میں اضافہ ہے کیونکہ آج جو سپلائی ہے وہ مطلب جس کی جو ہے برائلر گوشت کی قیمت 20 کلو تک بڑھا ہے۔ مرغی کا گوشت گزشتہ روز عبدالقادر ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ برائلر کی رسد کے مقابلے میں طلب میں اضافہ ہو گیا ہے اور مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 354 روپے سے 374 روپے ہو گئی ہے اور زندہ مرغی کے دام بھی 14 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں۔ فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے اور مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ زندہ مرغی کے دام بھی 14 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں اور فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 354 روپے سے 374 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ مرغی کے دام بھی 14 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں اور فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ برائلر کی رسد کے مقابلے میں طلب میں اضافہ ہوا ہے اور فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 354 روپے سے 374 روپے ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل برائلر کی قیمتیں جو کم ہو رہی تھیں اب ان کو بریک لگ گیا، بلکہ ریورس کیس جو ہے وہ لگ چکا ہوا کیونکہ آج 20 روپے کلو تک برائلر گوشت مہنگا کیا جا چکا ہے۔ سپلائی کو متاثر کر کے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ اب بھی کم ترین سطح پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ 20 روپے فی کلو تک یہ اضافہ کیا گیا۔ 354 روپے فی کلو گزشتہ روز برائلر گوشت کی قیمت تھی، آج 30 روپے اضافے کے بعد 374 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح جو زندہ برائلر ہے اس کی قیمت میں 14 روپے تک کا اضافہ کیا گیا اور زندہ برائلر میں جو فارم گیٹ ریٹ جو نکالا گیا وہ 238 روپے ہے، جبکہ ہول سیل یا سپلائی ریٹ زندہ برائلر کا 248 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 258 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو فارمر اور سپلائرز کی جانب سے برائلر کی سپلائی کی جاتی ہے آج وہ کم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے برائلر کی قیمتیں جو ہے مسلسل جو ہے وہ کم کی جا رہی تھی۔ مارکیٹ میں برائلر کی کھپت نہ ہونے کے باعث جو ہے قیمتوں میں استحکام دیکھنے کو مل رہا تھا۔ آج 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور 374 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ پنجاب کا 5446 ارب روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے فائنانس بل کی منظوری بھی دے دی۔ ایوان میں ایک بار پھر ارکان اسمبلی کی تنخواہ اور گریڈ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت ہوا۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایوان نے تمام مطالبات زر کی منظوری کے بعد فائنانس بل بھی منظور کر لیا۔ ایوان میں ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز سمیت گریڈ کا معاملہ زیر بحث رہا۔ رانا آفتاب کا کہنا تھا کہ حکومت ارکان اسمبلی کی تنخواہ اور الاؤنس کیسے بڑھا سکتی ہے، یہ معاملہ اسپیکر نے طے کرنا ہوتا ہے، ہمیں حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا یہ نقطہ دیکھنا پڑے گا، مناسب سوال اٹھایا گیا ہے۔ حکومتی رکن سمیع اللہ خان نے کہا کہ اگر ہمیں عوامی نمائندہ مانا جاتا ہے تو درست، اور اگر حکومت کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا گریڈ کیا ہوگا۔ ہماری تنخواہوں کا فیصلہ ایوان کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ عوامی نمائندے نہیں مانتے ہمیں گورنمنٹ سرونٹس کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہماری پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی تنخواہ اگر کسی متاثرہ شخص کی طرف بھیجتا ہوں تو وہ فیصلہ اس ہاؤس کا ہوتا ہے۔ اگر میری تنخواہ جانے کا فیصلہ ہاؤس کا ہو سکتا ہے تو پھر میری تنخواہ کا فیصلہ اس ہاؤس کو کرنا چاہیے۔ احمد رشید بھٹی کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی طرح پارلیمان کو بھی خود اپنی تنخواہ اور الاؤنس طے کرنا چاہیے۔ راجہ شوکت بھٹی نے کہا ہمیں بلیو بک کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہماری بلیو بک کے مطابق ہماری حیثیت بنتی ہے کم از کم، اور ساری دنیا میں ایک روایت ایسی ہے جو اس ڈسٹرکٹ یا اس پروونس کی کانسٹیٹیوشنل سیٹ ہوتی ہے، جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹس ہوئے، اس لوکل کرنسی میں $1 $1 ان کا اعزازیہ ان سے زیادہ ہے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ
कि they are public servant. अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने बिजली के 200 यूनिट्स के इस्तेमाल के बाद टैरिफ में होश रुबा इजाफे की मजम्मत की। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास जुमे रात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन फखर के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि आवाम की सहूलत और आसानी अवलीन तरजीह है। आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। वाल्टन रोड की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने वाल्टन रोड पहुँच गईं। वज़ीर आला ने ADA नाला वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा किया। मरीम नवाज ने डिफेंस मोड़ पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने साइट ऑफिस में खुसूसी इजलास में शिरकत की। COO मंसूर जंजुआ ने वज़ीर आला पंजाब को प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला को बताया गया कि ADA नाले की तामीर मुकम्मल हो चुकी, 2 डिस्पोजल स्टेशन भी तामीर होंगे। कैंची और फिरोजपुर रोड से DHA जाने के लिए ओवरहेड ब्रिज भी ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला पंजाब ने सितंबर तक वाल्टन रोड की 3 रोया कैरिजवे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। अक्टूबर तक दोनों इतराफ 6 रोया ADA नाला वाल्टन रोड खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वाल्टन रोड की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाई जाएं। आवाम की सहूलत और आसानी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं 4 माह में 100 से ज़ायद मनसूबों का आगाज़ कर दिया है। कल से काबीना इजलास में पंजाब हुकूमत ने तारीख साज सिख मैरिट एक्ट की मंजूरी भी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि PTI वाले सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। मरीम नवाज अब तक 100 के करीब मंसूबे लॉन्च करने के रिकॉर्ड बना चुकी है। हमने काम करके दिखाया। 400 अरब रुपए किसान कार्ड के लिए रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने तारीख साज सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी है। अज़मा बुखारी का कहना था सूबे भर में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर बनाए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजमिन से घर फौरी वापस लिया जाएगा। 400 अरब रुपए का किसान कार्ड जो है उसकी कल मंजूरी दी गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के पंजाब में हुकूमत पंजाब ने जो है कल उनके रूल्स की मंजूरी दी है और इंशाल्लाह ताला अब ये सिख मैरिज एक्ट जो है ये फौरी तौर पर पंजाब में नाफिजुल अमल होगा। रिटायरमेंट के बाद जो है वो किसी की सरकारी मुलाजमीन के अलॉटमेंट में जो घर की है उसमें तोसी नहीं होगी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह का कहना था कि सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी मिसाली इक़दाम है। सिख मैरिज एक्ट सबसे पहले पाकिस्तान में मंजूर किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हमारे सियासी कैदियों को रिहा करे। शेख वकास अकरम कहते हैं कि अदलिया बानी PTI से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह का बयान का नोटिस ले, जबकि मलिक अहमद खान बच्चर का कहना है कि हमारी तहरीक लाहौर से शुरू हो चुकी है जो रुकेगी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की पंजाब असम्बली आमद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले हमारे सियासी कैदियों को रिहा करे। बानी PTI को कैद में रखने के वफाकी वज़रा के बयानात काबिल मुज़म्मत हैं। चीफ जस्टिस इन बयानात का नोटिस लें। अदलिया से दरख्वास्त है कि बानी PTI को जल्द रिहा किया जाए। इलेक्शन हो तो वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ईवानों में वो लोग बैठे हों जिनके पास अवाम का मैंडेट है। साथ ही साथ अदलिया से हमारी दरख्वास्त है, खान साहब 11 महीनों से जेल में हैं, उसकी जल्द रिहाई हो और इस बात का भी नोटिस लिया जाए। एक मिनिस्टर साहब इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं कि खान साहब को 5 साल के लिए जेल में होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान से साबित होता है बानी PTI पर बनाए गए केस बेबुनियाद हैं। हुक्मरान बानी PTI की मकबूलियत से खौफजदा हैं। अदलिया राना सनाउल्लाह के बयान पर फौरी एक्शन ले। जो राना सनाउल्लाह का बयान आया है, इस हवाले से मैं ये कह दूं कि इस बयान से ये बात साबित हो गई कि खान साहब पे जितने भी केसेस हैं वो इसी बुनियाद पे फेक हैं, जाली है, बनाए गए हैं, क्योंकि ये उनसे डरते हैं उनको अंदर रखने के लिए। लेट्स सी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं और यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करते हैं। इस मौके पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर ने कहा कि हमारी तहरीक लाहौर से शुरू हो चुकी जो अब रुकेगी नहीं। हमारे चेयरमैन और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए, PTI का छीना गया मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हाजी पाक राजगढ़ आमद। मरीम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल गलियों का मुआयना किया और जायज़ा लिया। यूनियन कौंसिल 53 की मॉडल स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स, घरों की नंबरिंग और नेम प्लेट्स
लगाई गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यूनियन काउंसिल 53 हाजी पार्क राजगर में लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट के जायजे के लिए पहुंची। सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब, वजीर बल्दियात और दीगर वज़रा भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने प्रोजेक्ट के बारे में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मॉडल गलियों का मुआयना किया और मयार का जायजा लिया। वज़ीर आला ने छतों पर खड़े बच्चों को देख कर हाथ हिलाया, इनके नारों का जवाब दिया। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ घरों में जाकर खवातीन से बातचीत की, सेहत और मसाइल बारे दरियाफ्त किया। खातून ने वज़ीर आला को घर में मिलने वाली मेडिसिन का पैक दिखाया, दुआएं दी। बुजुर्ग खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, बारिश के बाद नई मॉडल स्ट्रीट में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। मुख्तलिफ टाउन्स के लिए अलग रंगों की टाइल लगाने की तजवीज़ दी गई। मरीम नवाज ने खवातीन, बच्चों और कारकुनों के साथ तस्वीरें और सेल्फियाँ भी बनवाईं। लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के तहत मॉडल स्ट्रीट्स में लाइट्स, घरों की नंबरिंग और नेम प्लेट लगाई गई हैं। कंक्रीट, स्टोन, टफटाइल और कलर्ड फ्लोर्स बनाए गए हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब को मानसून की तैयारियों से मुतल्लिक हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। शहर के तमाम ड्रेनों और सीवरेज लाइन्स की सफाई के 3 साइकिल मुकम्मल करने का दावा किया गया है। दूसरी जानिब अंडरपासेस से ड्रेन मसाइल के हल के लिए अदारों में सर जंग अभी भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में 28 जून से प्री मानसून बारिशें मुतवक्के। वासा ने तैयारियों की हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। वासा ने शहर की तमाम ड्रेनों और सीवरेज लाइन्स की सफाई के 3 साइकिल मुकम्मल कर लिए। मानसून में निकासियाब के मुताबिक SOPs जारी कर दिए गए। 18 इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स का कयाम, आगाही मुहिम भी मुकम्मल। नशीब इलाकों से बारिशी पानी के निकास के लिए 26 सकर मशीनें भी अलर्ट हैं। कलमा अंडरपास से निकासियाब के लिए इदारों में सरजंग जारी। गुज़श्ता बरस कलमा अंडरपास डूबने के बाद निकासियाब की जिम्मेदारी वासों दी गई। मानसून सीजन में 15 सितंबर तक कलमा अंडरपास से निकासियाब वासा की जिम्मेदारी है। CBD पंजाब की तरफ से ताहाल वासा को फंड्स फराहम न किए गए। वासा ने CBD पंजाब से 4 करोड़ रुपए के फंड्स का तकाजा किया था। पंजाब हुकूमत ने अंडरपासेस की ड्रेनेज की जिम्मेदारी भी वासा को तफवीज कर दी। वज़ीर आज़म ने तालीमी मसाइल से निपटने के लिए टास्क फोर्स बना दी। शहबाज शरीफ 19 रुकनी टास्क फोर्स चेयरमैन होंगे और टास्क फोर्स तालीमी बहरान पर काबू पाने के लिए स्ट्रेटजिक तजवीज़ पेश करेगी। मज़ीद तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बहरान और मसाइल से दो चार, वज़ीर आज़म का एक्शन। तालीमी मसाइल से निमटने के लिए 19 रुकनी टास्क फोर्स की तश्कील। शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। टास्क फोर्स तालीमी मसाइल से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक तजावीज़ पेश करेगी। टास्क फोर्स के अरकान एजाजी तौर पर काम करेंगे। सूबों को भी सिफारिशात दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम, सूबाई वज़रा, सूबाई सेक्रेटरीज एजुकेशन टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे। एशियाई बैंक के कंट्री हेड, FCDO के हेड, यूनिसेफ के नुमाइंदे टास्क फोर्स में शामिल। कंट्री हेड UNESCO, WFP और कंट्री चीफ JIC ये भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वफाकी हुकूमत टास्क फोर्स की पेश करदा तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुल्क में तालीम को फ़रोग देने के लिए इकदामात उठाएगी। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।